Hello students, welcome back to the lecture series of Fundamentals of Management. And today's topic is Levels of Management and Managerial Skills Associated with it. In our previous lectures, we have briefly understood the term management. Management is essential for an organized life and necessary to run all type of management. Good management is the backbone of successful organizations. Managing life means getting things done to achieve life's objective, and managing an organization means getting things done with and through other people to achieve its objective. Therefore, management is a set of principles relating to the functions of planning, organizing, directing, staffing, and controlling. And the application of these principles in harnessing physical, financial, human, and informational resources efficiently and effectively to achieve organizational goal. This was all about management that we have learned in our previous lectures. And in today's lectures, we will learn different levels of management and managerial skills associated with it. The term levels of management refers to the line of division that exists between various managerial positions in an organization. As the size of company or organization and workforce increases, the number of levels in management increases along with it, and vice versa. The different levels of management can determine a chain of command within an organization, as well as the amount of authority and typically decision-making influence by all managerial positions. Levels of management can be generally classified into three principal categories, all of which direct managers to perform different functions, which are top level management, middle level management, and lower level management. The top level of management is consist of board of directors, chief executives, or managing directors. The top management is the ultimate source of authority and it manages goals and policies of an enterprise. It devotes more time on planning and coordinating functions. Organization में 3 levels of management होते हैं, जो कि है हमारा टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, स्ट्रैटेजीज़, बजट्स बनाते हैं और टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. तो टॉप लेवल में आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के थ्रू एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. और टॉप लेवल में सबसे ज़्यादा जो स्किल यूज़ होती है वो है कॉन्सेप्चुअल स्किल, और कॉन्सेप्चुअल स्किल इज़ रिलेटेड टू थिंकिंग और फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर. Top level management are liable for the overall management, direction and policy framing of an organization, like making policies, procedures, rules and regulations, direction, planning the budget, etc. for smooth working of an organization. Therefore, they required conceptual skill. ठीक है, तो जो हमारा टॉप लेवल है वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल मैनेजमेंट को देखता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी फ्रेमअप करता है, जैसे पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट बनाना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ वर्किंग चलती रहे. और इन सब के लिए रिक्वायर्ड होती है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. Therefore, the role of top management can be summarized as top management lays down the objective and broad policies of the enterprise. ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाता है और पॉलिसीज़ क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. The top level management issues necessary instructions for preparation of
डिपार्टमेंट बजट, प्रोसीजर्स एंड शेड्यूल। टॉप लेवल मैनेजमेंट हर एक डिपार्टमेंट को नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि उसके बेसिस पे अदर डिपार्टमेंट्स अपने बजट्स, प्रोसीजर्स और शेड्यूल्स बना पाएँ। इट प्रिपेयर्स स्ट्रैटेजिक प्लान एंड पॉलिसीज़ फॉर द एंटरप्राइज, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजिक प्लान्स और पॉलिसीज़ भी क्रिएट करता है। इट अपॉइंट द एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल लेवल दैट इज़ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, और टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल के एग्जीक्यूटिव्स को भी रिक्रूट करता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, और सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन, देयरफॉर जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अदर लेवल्स को एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट करके। द टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड शेयर होल्डर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के साथ डायरेक्टली डील करता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बेटर कर सके। Therefore, the top level management is the ultimate source of power and authority, as it oversees the goals, policies and procedures of a company, and its main priority is on the strategic planning and execution of overall business success. Therefore, we can say that top level management provides overall guidance, direction and encourage हार्मनी एंड कोलैबोरेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी भी एक्शन को इनिशिएट करता है और उस एक्शन को फर्दर इम्प्लीमेंट करवाता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इन्हीं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को फर्दर कंप्लीट करवाते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स और हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स। The next level of management is middle level of management. The branch managers and departmental managers constitute middle level. They are responsible to the top level management for the functioning of their department. They devote more time to organizational and directional function. In small organization, there is only one layer of middle level management, but in bigger enterprise, there are many layers of middle level management. That is, there may be senior manager, manager, assistant manager, junior manager, etc. ठीक है, तो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं हमारे ब्रांच मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। और स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल लेयर हो सकती है मिडिल लेवल की, बट बिगर एंटरप्राइज में, बिगर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स भी हो सकते हैं मिडिल लेवल में, जैसे सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और उनके अंदर एग्जीक्यूटिव्स। द मिडिल लेवल फॉलोज ईच एंड एवरी ऑर्डर एंड डायरेक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल क्या करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के हर एक ऑर्डर और डायरेक्शन को फॉलो करता है। इट एम्स इज़ टू कंप्लीट डेली एक्टिविटीज़, और उसका एम क्या होता है? डेली एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवाना। द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी लिमिटेड, और इन मैनेजर्स की जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। द ह्यूमन रिलेशन स्किल्स आर नेसेसरी फॉर दीज मैनेजर्स। तो यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती हैं इन मैनेजर्स के लिए। तो ह्यूमन रिलेशन स्किल इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि जो मिडिल लेवल है वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है टॉप लेवल से भी और लोअर लेवल से भी। ठीक है, तो मिडिल लेवल क्या है? एक लिंकिंग चेन है बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। इसीलिए इन मैनेजर्स में ह्यूमन रिलेशन स्किल्स होनी चाहिए। और ह्यूमन रिलेशन स्किल्स क्या करती हैं? दूसरों के साथ
कोऑर्डिनेट करती हैं और एक कॉर्डियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल के एग्जीक्यूटिव्स या वर्कर्स इनकी बात सुने और उनको फॉलो करें और इम्प्लीमेंट करवाएं। देयरफॉर middle level management execute the plans of the organization in accordance with the policies and directives of the top management। तो middle level management क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है इन अकॉर्डेंस विद जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनी है और जो भी डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है टॉप लेवल के मैनेजर्स के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंगली वो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाता है। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो मेक्स प्लान्स फॉर सब यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सब यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिडिल लेवल क्या करता है, फर्दर प्लानिंग करता है और उनके लिए प्लान्स बनाता है। दे पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। वो लोअर लेवल के लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयमेंट में, मतलब उनको रिक्रूट करने में और उनकी ट्रेनिंग करवाने में भी पार्टिसिपेट करते हैं। दे इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन पॉलिसी फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो भी पॉलिसीज़ हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती हैं उन पॉलिसीज़ को वो इंटरप्रेट करती है और एक्सप्लेन करती है लोअर लेवल तक। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ विद इन दी डिवीजन और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जितने भी डिविजन्स ऑर्गेनाइजेशन में बने हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। इट ऑल्सो सेंड्स इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डेटा टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। और जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं या डेटा है जो उन्हें लोअर लेवल से या और कहीं से उन्हें पता चली हैं, उन सारे डेटा को वो टॉप लेवल तक पहुंचाता है। दे इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर। ठीक है, तो अपने जूनियर मैनेजर्स की जो उनके अंडर काम कर रहे हैं या सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को वो इवैल्यूएट करता है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर्स टूवर्ड बेटर परफॉर्मेंस। वो इंस्पायर करते हैं अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को, ठीक है, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें। Therefore, we can say that middle level managers are in charge of employment and training of lower level. They also communicates between top level and lower level as they transfer information, reports and other important data of the enterprise to the top level of management. Apart from these, there are three primary functions of middle level management, which are to carry out the plan of organization according to policies and directives laid down by the top level management। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ और डायरेक्शंस प्रोवाइड की हैं उसी के अकॉर्डिंग प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाना। द नेक्स्ट वन इज़ टू ऑर्गेनाइज द डिवीजन एंड डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जितनी भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और उनको ऑर्गेनाइज करवाना। एंड द थर्ड वन इज़ टू बी एन इंस्पिरेशन और क्रिएट मोटिवेशन फॉर जूनियर मैनेजर्स टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। ठीक है, तो अपने जूनियर मैनेजर्स को मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना ताकि वो अपनी इफ़िशिएंसी को फर्दर इंक्रीज कर पाएँ। तो ये इम्पॉर्टेंट वर्क होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। द नेक्स्ट लेवल इज़ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। The lower level of management is also referred to as the supervisory or the operative level of managers. They oversee and direct the operative employees. They spend most of their time addressing the functions of the firm as instructed by the managers above them, that is middle level managers. ठीक है, तो लोअर लेवल मैनेजर्स को हम सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव लेवल के मैनेजर्स भी कह सकते हैं। तो ये जितनी भी वर्किंग क्लास है ऑर्गेनाइजेशन में या जितनी भी ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको देखती है और उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इनका मैक्सिमम टाइम ऑर्गेनाइजेशन में इंस्ट्रक्शंस देने में जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को इम्प्लीमेंट करवाना और कंप्लीट करवाना, ये इनका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। The lower level manager are the first line of manager as they feature at the base of operations.
So they are essential personnel that communicates the fundamental problem of the firm to the higher level. ठीक है, तो क्योंकि लोअर लेवल मैनेजर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिव लेवल पे काम करवाते हैं या ये ऑर्गेनाइजेशन के बेस से डायरेक्टली लिंकअप होते हैं, इसीलिए जो भी प्रॉब्लम्स या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इस लेवल पे एम्प्लॉयज़ फेस करते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को वो फर्दर कम्युनिकेट करता है टॉप लेवल तक या हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक. दिस मैनेजमेंट लेवल इज मेड अप ऑफ द फोरमैन, द लाइन बॉस, द शिफ्ट बॉस एंड superintendents. This level includes supervisors and executives. These officers have near contact with the worker or technical staff. All the reports, suggestions, grievances are communicated to the top level managers by this management. That is, they explain the work procedure to the workers. ठीक है, तो ये workers को work procedures explain करते हैं कि किस तरह उन्हें काम करना है. They initiate planning and communicate report and suggestions to middle or top level management. ये प्लानिंग को इनिशिएट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स या कोई भी सजेशन मिडिल लेवल को और टॉप लेवल के मैनेजर्स को. दे असाइन एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ वर्कर. ये वर्कर्स को वर्क असाइन भी करते हैं और उनको सुपरवाइज भी करते हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट लोअर लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न्ड विद डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. देयर एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स असाइनिंग ऑफ जॉब एंड टास्क टू वेरियस वर्कर्स. ठीक है, तो इनका मेन एक्टिविटीज़ क्या है कि वर्कर्स को जॉब और टास्क असाइन करना. दे गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़. तो जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको वो गाइड करता है और इंस्ट्रक्ट करता है वर्कर्स को. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एज वेल एज क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कितनी क्वान्टिटी में प्रोडक्शन करना है और क्या उनकी क्वालिटी रहेगी. They are also entrusted with the responsibility of maintaining good relation in the organization. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में गुड रिलेशंस बने रहें, उनको मेंटेन करके रखना, ये भी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दे कम्युनिकेट वर्कर्स प्रॉब्लम, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस टू द हायर लेवल एंड हायर लेवल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू द वर्कर्स. ठीक है, तो जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं या अगर कोई सजेशन है, इन सारी चीज़ों को वो कम्युनिकेट करते हैं या रिकमेंड करते हैं अपने हायर लेवल को, और हायर लेवल के जो भी गोल्स हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फर्दर कम्युनिकेट करते हैं वर्कर्स तक. दे हेल्प टू सॉल्व द ग्रीवियंस ऑफ द वर्कर. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अगर उनकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व आउट करवाते हैं. दे सुपरवाइज एंड गाइड द सबऑर्डिनेट. ठीक है, तो लोअर लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को या वर्कर्स को. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स. और वर्कर्स को अगर कोई भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे वो अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं. दे अरेंज नेसेसरी मटीरियल्स, मशीन्स, टूल्स एट्सेट्रा फॉर गेटिंग थिंग्स डन. ठीक है, तो जितनी भी नेसेसरी मटीरियल्स हैं जैसे रॉ मटेरियल्स या मशीन्स हैं या टूल्स है या मशीन्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इन सारी चीज़ों को वो सही करवाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के थ्रू काम करवाते हैं. दे प्रिपेयर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर. और अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एक पीरियोडिकल रिपोर्ट उनकी परफॉर्मेंस की बनाते रहते हैं और इन रिपोर्ट्स को वो फर्दर कम्युनिकेट करते हैं हायर लेवल तक. दे एंश्योर डिसिप्लिन इन द एंटरप्राइज. अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एंटरप्राइज में एक डिसिप्लिन को मेंटेन करवाते हैं. दे मोटिवेट वर्कर्स. और अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते रहते हैं ताकि वर्कर्स इफ़िशिएंटली और इफ़िशिएंसी के साथ काम करें. दे आर द इमेज बिल्डर्स ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर. ठीक है, तो अपने एंटरप्राइज की अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करते हैं. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखते हैं अपने वर्कर्स के साथ. देयरफॉर एट द एंड वी कैन कंक्लूड दैट टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड ओवरसीइंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. Middle level managers are responsible for executing organizational plans which comply with the company's policy. They act as an intermediary between top level and lower level management.
and the lower level managers focus on execution of tasks and serves as role model for the employee they supervise. Now moving toward the next topic, which is skills of management or managerial skills. In order to successful in planning, organizing, leading and controlling, managers must have wide variety of skills. A skill is the ability to do something proficiently. Managerial skills fall into three basic categories, which is technical skill, human skill and conceptual skill. The degree to which each type of skill is used depends upon level of the manager's position. That is, ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. जो हमारा टॉप लेवल है वो डायरेक्टली डील करता है फोरकास्टिंग से. ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स भी बनाते हैं. इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं ग्रैंड लेवल पे. इसीलिए इन मैनेजर्स को अपने माइंड का सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है. मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी थिंकिंग एबिलिटी को. इसीलिए इनको रिक्वायर्ड होती हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल. और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके रखता है. ठीक है, इसका मतलब इनको डील करना होता है डायरेक्टली ह्यूमन से. इसीलिए इनको ज़रूरत होती है ह्यूमन स्किल्स की. वहीं जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्सपर्टाइज की. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली वर्क करते हैं ग्राउंड पे. ग्राउंड पे मतलब प्रोडक्शन हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है उनकी स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स की और ऐसी एबिलिटी की जिसके थ्रू वो अपने नॉलेज को वो अप्लाई कर सकें. इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टेक्निकल स्किल्स की. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉन्सेप्चुअल स्किल की, क्योंकि वो प्लानिंग करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं एंड बाकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करते हैं. मिडिल लेवल को ह्यूमन स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली डील करते हैं ह्यूमन से, टॉप लेवल के मैनेजमेंट से भी और लोअर लेवल के मैनेजमेंट से भी. और लोअर लेवल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टेक्निकल स्किल की. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल परफॉर्म करते हैं ग्राउंड पे, यूज़ करते हैं अपने टेक्निकल स्किल्स को मशीन्स पे और ये बाय हैंड ज़्यादा काम करते हैं. In order to perform various management functions effectively, managers must possess certain skills. Skills refers to practical ability or expertness in an action or doing something. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कराने के लिए मैनेजर्स को कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती हैं. और स्किल्स क्या है? ये एक इंडिविजुअल की प्रैक्टिकल एबिलिटी है या एक्सपर्टनेस है उसके एक्शंस में, जिसके थ्रू वो कोई काम इफ़ेक्टिवली कर सकता है. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कार्ड्स, वेरियस स्किल्स of managers are grouped into 3 categories, which is technical skill, human skill and conceptual skill. The technical skill refers to the ability to understand the assigned work and to perform the work with full work ability. ठीक है, तो टेक्निकल स्किल क्या है? एक इंडिविजुअल की एबिलिटी जिसके थ्रू वो दिए गए काम को समझ सकता है और उस काम को वो फर्दर परफॉर्म भी कर सकता है अपनी फुल एबिलिटी के साथ. इट इज़ कंसर्न विद व्हाट इज़ डन एंड डील्स विद थिंग्स. ठीक है, तो ये डायरेक्टली कंसर्न होता है कि हमने क्या किया है और ये अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड होता है. दीज स्किल्स pertain to knowledge and proficiency in activities involving methods and procedures.
द लोअर लेवल मैनेजमेंट मस्ट पोजेस टेक्निकल स्किल। ठीक है, तो जो हमारा लोअर लेवल का मैनेजर है उसमें टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली डील करता है हमारे नॉलेज से और हमारी एक्टिविटीज़ की प्रोफिशिएंसी से, जिसमें हम मेथड्स का यूज़ करते हैं और एक प्रोसीजर का यूज़ करते हैं कोई भी काम को करने के लिए। देयरफॉर it is a specialized area of knowledge and expertise and the ability to apply that knowledge. This makes up managers technical skill. ठीक है, तो इसमें एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नॉलेज होना चाहिए एक इंडिविजुअल के पास। वो इतना एक्सपर्ट हो कि पर्टिकुलर इस नॉलेज को वो अपनी एबिलिटी के साथ उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल में केवल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, उसका एप्लीकेशन भी उस इंडिविजुअल को आना चाहिए। इट इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर, डिज़ाइनिंग एन ऑफिस बिल्डिंग, एनालाइजिंग मार्केट रिसर्च, वर्किंग ऑन अ मशीन, working on a set, process and procedure, etc. These type of skills are especially important for supervisory managers because they work closely with employees who are producing the goods and services of the firm. The next skill is human skill or human relation skill. These skills refers to the ability of managers to interact effectively with the customers and staff of an organization. Middle level managers must possess these skills so that they can train a team of efficient worker. ठीक है, तो मिडिल लेवल के मैनेजर्स के पास ह्यूमन रिलेशन स्किल्स होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली डील करते हैं कस्टमर्स से और ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ से। ये हेल्प करते हैं टीम्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। तो क्योंकि इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्कर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, स्टाफ के साथ, इसीलिए मिडिल लेवल पे ह्यूमन रिलेशन स्किल्स का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दे इंटरैक्ट विद टीम ऑफ स्टाफ और वर्कर्स सो दैट दे कैन एफिशिएंटली कंप्लीट वर्क और टास्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं टीम और स्टाफ और वर्कर, ताकि वो इफ़िशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन के वर्क और टास्क को कंप्लीट करा पाएँ। Human relation skills are one's ability to work effectively with others on person-to-person basis and to build up cooperative group relationship within the organization to achieve the organizational objectives. तो ह्यूमन रिलेशन स्किल एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है जिसके थ्रू वो अदर पर्सन के साथ इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है। वो उनके साथ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप मेंटेन करके चल सकता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा पाए। Therefore, we can say that human relation skills are the interpersonal skills that managers uses to accomplish organization goals through the use of human resources. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करके। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है। This set of skills includes the ability to understand human behavior, to communicate effectively with others, and to motivate individuals to accomplish their objective. ठीक है, तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू मैनेजर्स ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं और उनको साथ ही साथ मोटिवेट भी करते हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर पाएँ। They try to give positive feedback to employees. They are sensitive to individual needs. They show a willingness to empower subordinates, and this kind of nature is an example of human relation skill. ठीक है, तो एक अच्छे ह्यूमन रिलेशन स्किल के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कि इंडिविजुअल की नीड को समझना, हमेशा ट्राई करना कि हम एम्प्लॉयज़ को एक पॉजिटिव फीडबैक दें और अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना। ठीक है, उनको टाइम टाइम पे इस चीज़ का डर उनके मन में ना आने देना कि उनको कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा सकता है। उनको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप या लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड को स्टैब्लिश करना उनके बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में।
Therefore, we can say that the human relation skill or interpersonal skill are the skills that present the manager's ability to interact, work or relate effectively with people. These skills enable the managers to make use of human potential in the company and motivate the employees for their better result. And the next category of skill is conceptual skill. It is also known as general management skill. These skills refers to the ability of the manager to forecast, to think new idea, to plan for fighting problem, to make a procedure, rules and regulations for an organization. It is concerned with why a thing is done. These skills also refers to the ability to see the whole picture, to recognize significant elements in a situation and to understand the relationship among these elements. The top level management must possess these skills so that they can deal with competition, abstractions and to set models and to formulate plans. तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को हम जनरल मैनेजमेंट स्किल्स भी कहते हैं। ये स्किल्स एक मैनेजर की एबिलिटी होती हैं जिसके थ्रू वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं, वो न्यू आइडियाज़ को सोच सकते हैं, वो प्लान कर सकते हैं प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन को रूल्स रेगुलेशन एक प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी को फ्रेम अप करते हैं। इनका मेन कंसर्न होता है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कर रहे हैं तो हम क्यों करें। इस क्यों का आंसर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होता है। ये टॉप लेवल मैनेजर्स की एक ऐसी एबिलिटी है या कॉन्सेप्चुअल स्किल की एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू ये एक साथ पूरे पिक्चर को देख सकते हैं। जैसे इन फ्यूचर अगर हम कोई भी एक्शन लेने जा रहे हैं तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेंगे और क्या थ्रेड्स हमें फर्दर फेस करने पड़ेंगे। इन स्किल्स के थ्रू वो सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन की, और उन एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको भी वो ईजिली समझ सकते हैं। टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास ये स्किल्स होनी ज़रूरी होती हैं ताकि वो डायरेक्टली डील कर सकें कंपटीशन के साथ, एब्स्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी आइडिया के साथ डील करना रैदर देन किसी भी इवेंट के साथ डील करना। और टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, वो डायरेक्टली डील करता है फ्यूचर के आइडियाज़ के साथ, न्यू थिंकिंग के साथ, एंड टू सेट मॉडल। और जो भी वो एक्शन लेना चाहते हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव उन्होंने बनाया है उस ऑब्जेक्टिव को वो किस तरह फुलफ़िल करेंगे या अचीव करेंगे, उसके लिए एक मॉडल को सेट करना एंड टू फॉर्मुलेट प्लान। और इसके लिए प्लानिंग करना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना और उन प्लानिंग को अटेन करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए प्लान्स बनाना। तो ये सारे काम होते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के, और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स नेसेसरी होती हैं हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लिए। Therefore, we can conclude that the conceptual skills involve the skills managers present in terms of knowledge and ability for abstract thinking and formulating ideas. The manager is able to see an entire concept, analyze and diagnose a problem, and find creative solutions. This helps the managers to effectively predict hurdles their departments or the business as a whole may face. ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स डायरेक्टली डील करता है नॉलेज से और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से, जिसके थ्रू हम न्यू आइडियाज़ को हम फॉर्मुलेट करते हैं। इन स्किल्स के थ्रू एक मैनेजर किसी भी आइडिया के पूरे कॉन्सेप्ट को देख सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है और उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को वो डायग्नोस कर सकता है और उन प्रॉब्लम्स के लिए वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी आइडेंटिफाई कर सकता है या क्रिएट कर सकता है। इन स्किल्स के थ्रू एक मैनेजर इफ़ेक्टिवली प्रिडिक्ट कर सकता है कि इन फ्यूचर कौन से हर्डल्स आने वाले हैं जो एक डिपार्टमेंट या पूरा बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकता है, और उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करता है
टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो हम कह सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। According to Kuhns, another skill is important to achieve the goal of an organization, which is diagnostic skill। ठीक है, तो कून्स के अकॉर्डिंग एक और स्किल है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए, वो है डायग्नोस्टिक स्किल। और डायग्नोस्टिक स्किल्स डायरेक्टली डील करता है हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट के साथ। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू डिटरमाइन बाय एनालिसिस एंड एग्जामिनिंग द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन। It is the ability to cut through unimportant aspect and quickly get to the heart of the problem. It is the most difficult one to develop because they require proper blend of analytics with common sense and intelligence to be effective, which comes from years and years of experience. ठीक है, तो जो डायग्नोस्टिक स्किल है वो टॉप लेवल के मैनेजर्स की एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो किसी भी प्रॉब्लम की या सर्कमस्टेंस की या किसी भी कंडीशन को वो आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और उस कंडीशन को वो आसानी से समझ सकते हैं। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू जितने भी अनइम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं या इवेंट्स हैं उनको ये मैनेजर्स कट कर सकते हैं और अपने प्रोसीजर से डिलीट कर सकते हैं। इस स्किल्स के थ्रू वो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं और उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। ये स्किल सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है डेवलप करने के लिए, इसलिए क्योंकि इसमें इंडिविजुअल की एनालिटिकल स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, उनके कॉमन सेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, उनके इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत पड़ती है और ये सारी चीज़ें कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद आती हैं। Therefore, through this chart we can conclude that there are 3 levels of management, which is top level, middle level and lower level. The top level requires the conceptual skill, the middle level requires the human skill and the lower level requires the technical skills. Now moving toward the last topic of this lecture, which is relative time spent for each function. ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन में 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है डील करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, गोल्स को या स्ट्रैटेजी को इस्टेब्लिश करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग में हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, वर्क को हम स्मॉल टास्क एंड ड्यूटीज़ में हम डिवाइड करते हैं और अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पोजीशन को प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टिंग एंड लीडिंग में हम एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और अपने वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को लीड करते हैं टुवर्ड अ डायरेक्शन। और कंट्रोलिंग में हम कंपेयर करते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने प्लानिंग में सेट किए थे या अपने जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उसको हम कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल रिजल्ट के साथ, और अगर कोई भी डेविएशन वहाँ पे होता है तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने अभी पढ़ा कि 3 लेवल्स होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। और टॉप लेवल में कॉन्सेप्चुअल स्किल या डायग्नोस्टिक स्किल की ज़रूरत होती है, मिडिल लेवल में ह्यूमन रिलेशन स्किल की ज़रूरत होती है या इंटरपर्सनल स्किल की ज़रूरत होती है, वहीं लोअर लेवल में टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो तीनों लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो पांचों फंक्शन में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है प्लानिंग की, इसको आप थोड़ा और बेंड कर लीजिए ऐसे। तो हम यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं: टॉप लेवल की, मिडिल लेवल की और लोअर लेवल की। तो इस अगर फिगर में हम देखेंगे तो टॉप लेवल सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है? प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में। मिडिल लेवल सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है? ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग में, कंट्रोलिंग में भी और थोड़ा बहुत प्लानिंग में भी।
क्यों? क्योंकि मिडिल लेवल डायरेक्टली डील करता है हमारे टॉप लेवल के साथ भी और लोअर लेवल के साथ भी। मिडिल लेवल एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करके चलता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के साथ, ताकि टॉप लेवल के जो भी प्लान्स हैं उनको वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके लोअर लेवल तक। वहीं जो हमारा लोअर लेवल है वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग में, और सबसे कम टाइम स्पेंड करता है कंट्रोलिंग में या प्लानिंग में। ठीक है, तो इस फिगर के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो टॉप लेवल है उसका जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा स्पेंड होता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में। मिडिल लेवल जो है इक्वल टाइम स्पेंड करता है हर एक लेवल पे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग में। और जो लोअर लेवल है वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है डायरेक्टिंग एंड लीडिंग में। क्यों? क्योंकि इनको टास्क को इम्प्लीमेंट कराना होता है और इफ़ेक्टिवली उन टास्क को कंप्लीट करना होता है, या अपने डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स को उन्हें कंप्लीट करना होता है, और ये सबसे कम टाइम स्पेंड करते हैं कंट्रोलिंग में और प्लानिंग में। This was all for today's class. For any kind of question or query, you can post your comments in the comment section, or you can post your question in the comment section. Thank you class and have a nice day.